Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 9b of class 10th mathematics, chapter name arithmetic and geometric progression. So in this video we will discuss about the sum of an arithmetic progression. Okay, first let's see the formula for sum of the arithmetic progression. Suppose we have nth term, first term as a, second term a plus d, third term a plus d and last term l. So total number of term be n. Suppose all the sum is equal to s for sum. So if we interchange the number, means first we write l, then l minus d, then l minus 2d and in last a. So result will be same. So s plus s2s is equal to a plus l, d cancel out, a plus l, so n times. So s is equal to n upon 2 a plus l, या simply s is equal to n upon 2 a plus n minus 1 into d. Here substitute the value of l is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. So if you write here value of l, then it will be changed in the form of n upon 2 a plus n minus 1 into d. The main formula is sum of nth term of an AP is equal to n upon 2 a plus n minus 1 into d, and if last term, total number of term and a first term are given, then you can apply sum of n term is equal to n upon 2 a plus l. If last term given, then apply direct this formula, otherwise you can write you can apply n upon 2 in bracket 2 a plus n minus 1 into d. Okay, now start the exercise 9b. Here some questions are given. Find the sum of first 15 term of AP, first 50 term of an AP, first 17 term of AP, first 24 term of AP. ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, आपको इनका सम फाइंड करना है. तो हम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं और जो डिसमल के फॉर्म में है वो सॉल्व कर दे रहे हैं. ठीक, बाकी दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. क्लियर? नो, इसमें क्या कहा है, फाइंड द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एपी. मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, 15th टर्म का जो सम होगा वो फाइंड करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस ऐसे मालूम होता है, सेकेंड माइनस थर्ड, सॉरी सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, मीन्स जो भी टर्म है उससे पहले वाला माइनस कर देंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा. अच्छा, अब हमको a मालूम है, हमको d मालूम है. ये a हो गए 2 एंड d इज इक्वल टू 3. 15th टर्म का सम फाइंड करना है. सो n इज इक्वल टू 15. ओके, राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d. Substitute the value of n, a and d. n means 15 upon 2, okay, in bracket 2 multiplied by value of a is equal to 2, n minus 1 means 15 minus 1 into difference as a 3. Now simplify the value. 15 upon 2, 4 plus 14 3 is 42, means 15 upon 2 multiplied by 46. Okay, now multiplied by, divide by 46 by 2, we get 23 as a quotient. Now 15 multiplied by 23, 15 is 45, 15 to the 30 and carry 4, 345 as a sum of the given AP. क्लियर? क्या किया, सबसे पहला काम जो सीरीज थी, जो प्रोग्रेशन दी गई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड कर लिया. उसके बाद सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. एस एन इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की वैल्यू पुट करते जाइए. n15 a2, n15 d3. बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 15th टर्म ऑफ एन AP, sum of 15 term of an AP is 345. Clear? Now fourth part of question number 1. ये डिसमल के फॉर्म में है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा. ओके, इट इज़ योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट 24th टर्म ऑफ एन AP whose given term are 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन. तो अब हमको n की वैल्यू 24 यहाँ से मालूम हो जाएगी.
फर्स्ट टर्म 0.6 हो जाएगा और इनका और इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फोर्थ पार्ट. लुक हियर, इट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. A is equal to 0.6. Difference D is equal to second term minus first term is equal to 1.1. आपको कितने टर्म का सम निकालना है? 24 टर्म का. सो n is equal to 24. क्लियर? सेम अगेन, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into difference. अब हमको क्या करना है? सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. S24 मीन्स 24 टर्म का आपको सम चाहिए था. n इज इक्वल टू 24 अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 प्लस n इज इक्वल टू 24 माइनस 1 इंटू 1.1 सॉरी, d इज इक्वल टू 1.1. ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. बस सॉल्व करने पे कितना आएगा? 12. 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मीन्स 1.2 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.1. अब हमको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड-मॉस रूल, फर्स्ट मल्टीप्लाई 23 बाई 1.1, 25.3. क्लियर? एड दिस टू नंबर 26.5. अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, मालूम हो जाएगा. $318 एज ए सम ऑफ 24 टर्म. आप कैलकुलेशन को एक बार रीचेक कर लीजिएगा, अगर से कुछ चेंज होगा तो आप उसको अपना सही कर लीजिएगा. प्रोसेस की सिर्फ बात करिए, यहाँ पे कैलकुलेशन जो हुआ है वो नहीं कोई मतलब है, लेकिन आप एक तरीके से सारी वैल्यू को रख के चेक कर लीजिए आपका रिजल्ट सेम मिल रहा है कि नहीं. हो सकता है कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप अपना समझ लीजिएगा उसमें. ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट. लेकिन ये आंसर सही आ रहा है, आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप अपना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने से चेक करके देख लीजिए. कैलकुलेशन की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ दिस. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म मालूम है, मीन्स ये आपका ए हो गया, ये आपका एल हो जाएगा और डिफरेंस निकाल देंगे तो हमको -2 का डिफरेंस मालूम हो जाएगा, 32 माइनस 34. लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म होंगे. तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी. n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें हम a l ये Tn की वैल्यू 2, a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू निकल आएगी. इसी तरीके का हम लोगों ने क्वेश्चन इससे पहले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं. जब n की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो अब आपके पास तो सारी चीज़ें हो गई, a है, d है, n है, आप सम ऑफ n टर्म फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो ये क्वेश्चन अपने से लगाइएगा, लेकिन कुछ कोशिश करिए. ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप यूट्यूब से देख लीजिए फिर वैसे कॉपी कर लीजिए, वो कोई तरीका नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज -2 मीन्स डी की वैल्यू मालूम है -2. फाइंड इट्स सम इफ इट्स फर्स्ट टर्म 100 एंड लास्ट टर्म इज -10. फिर से क्या मालूम है आपको? फर्स्ट टर्म मालूम है a एंड l मालूम है, d मालूम है, n नहीं मालूम है. तो सबसे पहला काम तो इसमें Tn इज इक्वल टू -10, a इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो n की वैल्यू मालूम हो जाएगी. जब n मालूम हो जाएगा तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, या Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दोनों फार्मूला हम लोगों ने अभी स्टार्ट में ही देखा है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा. आपके पास बुक है तो ठीक है, वरना स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन को रीड करके ट्राई करिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको पढ़ लेते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 42 मीन्स 6 टर्म का सम कितना है? 42 है. द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज़ 1:3. कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन ए पी मीन्स हमको ए की वैल्यू फाइंड कर दें, उसके बाद 13 टर्म निकालेंगे, वो अलग इशू है. पहले इतना काम करते हैं कि ये जो दो कंडीशन है उससे हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 13 टर्म फाइंड हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज 42. सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज 42. द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म मीन्स, और क्या दिया है? इसके 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 है. ये दिया गया क्वेश्चन, ये आपका है. आपसे क्या क्या है? कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड 13 टर्म. हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और T13 फाइंड करना है. क्या क्या फाइंड करना है? ए इज इक्वल टू वॉट एंड T13 की वैल्यू फाइंड करनी है. दो चीज़ें हम लोगों से पूछी गई हैं. तो सबसे पहला काम देखते हैं कुछ रिलेशन बनता है कि नहीं. एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. आप इसी फॉर्मूले को प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि जब हमको n निकालना ही है लास्ट टर्म से तो घूम फिर के तो यही बनना है ना. तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा. l की वैल्यू बहुत रेयर केस में यूज़ होगी. एस एन इज इक्वल टू 42. देखिए n नहीं मालूम है आपको ना, सॉरी n की वैल्यू तो 6 है. 6 टर्म का सम निकाला जा रहा है, a नहीं मालूम है. 2a प्लस n-1 की जगह पे 6-1 इंटू डिफरेंस. डिफरेंस भी आपको नहीं मालूम था, तो ये कितना हो जाएगा? 42, 2 3 6, 2a प्लस 5t. ठीक, अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें 14 मीन्स 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5t. एक रिलेशन आपका ये हो गया. अभी इसकी हमें जहाँ ज़रूरत होगी हम उसको देखेंगे कि क्या किया जा सकता है. लीनियर इक्वेशन बन रहा है शायद. और एक कंडीशन ये मालूम थी कि 13th एंड 10th टर्म का रेशियो 1:3 है. तो a10 की वैल्यू इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने tn कैसे पढ़ा था? tn के लिए फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी. a प्लस n-1 इंटू डी. तो 10th टर्म कैसे हो जाएगा? a प्लस 10-1 मतलब 9d हो जाएगा. एंड 30 टर्म कैसे हो जाएगा? a प्लस 30-1 मीन्स a प्लस 29d हो जाएगा. ठीक, तो ये जो चीज़ें दी है उससे हम एक रिलेशन और मालूम कर लेंगे. आइए वो भी बनाते हैं. अब देखिए आपको रिलेशन क्या मालूम है? T10 इज टू T30 था ना, 1:3. तो अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें, a10 हो जाएगा a प्लस 10-1 इंटू डी मीन्स a प्लस 9d. ये हो गया. इसी तरीके से T30 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 30-1 इंटू डी, तो a प्लस 29d हो जाएगा. n-1 की जगह पे जब 10 रखेंगे तो 10-1 करेंगे तो 9 आ जाएगा. एंड जब 30 रखा जाएगा तो 30-1 करने पे 29 आ जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3a प्लस 29d नहीं सॉरी 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d. ठीक है, 3 9 27. नाउ इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a. 27 माइनस 29 इज इक्वल टू 2d मीन्स a इज इक्वल टू d हो गए. ये आपका क्या हो गया? सेकेंड रिलेशन. ठीक, फर्स्ट रिलेशन क्या मिला था आपको? फर्स्ट रिलेशन था आपका 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14. ये आपका फर्स्ट रिलेशन था. तो अगर हम इसमें a की वैल्यू पुट कर दें तो d निकल आएगा, या d की वैल्यू पुट कर दें तो a निकल आएगा. तो आपसे क्वेश्चन में d पूछा गया है, सॉरी फर्स्ट टर्म पूछा गया है. तो d की वैल्यू पुट कर दें इन टर्म ऑफ a. दोनों चीज़ सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, बस आपको जो इजी समझ में आ जाए. 7a इज इक्वल टू 14 मीन्स a इज इक्वल टू 7. क्लियर? a एंड d आर सेम, सो बोथ आर इक्वल टू 7. एक काम हो गया. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपसे कि फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, वो तो हो गया. उसके बाद फिर आपसे कह रहा है फाइंड इट्स 13th टर्म. फाइंड एंड सॉरी कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन ए पी मीन्स T13 भी आपको फाइंड करना. तो T13 इज इक्वल टू a प्लस 13-1 इंटू डी मीन्स a प्लस 12d. ये हो गए. a की वैल्यू क्या है? 7 प्लस 12 इंटू 7 ये ना इज इक्वल टू 91. देखिए 84 प्लस 7 इज इक्वल टू 91. ये आपका 13 टर्म हो गया. क्लियर? क्या किया? फर्स्ट सम के रिलेशन से एक इक्वेशन बनाया और रेशियो के रिलेशन से एक इक्वेशन बनाया. फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 7. The 13th term of an AP is 4 times its
third term. 13th term of an AP is 4 times its third term. If the fifth term is 16, then find the sum of its first 10 term. Clear? आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको मालूम है, उसके बाद तो हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे। नाउ 7th क्वेश्चन, द 13th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स, मीन्स जो इसका 13th टर्म है मीन्स T13 इज 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म, 4 टाइम ऑफ इट्स थर्ड टर्म। क्लियर? ये क्वेश्चन दिया है, ये रिलेशन दिया है, मीन्स जो 13th टर्म है आपका वो 4th टाइम ऑफ थर्ड टर्म है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से अगर हम एक रिलेशन बनाएं तो T13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 12D, मीन्स 13 माइनस 1 इंटू डी करिएगा तो ऐसा होगा। यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होना है। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 2D आ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट लगा रहे हैं। सो फर्स्ट रिलेशन आपको मिल गया A प्लस 12D और इधर हो गया 4A प्लस 8D। क्लियर? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो A माइनस 3A इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू 3A, ये आपका रिलेशन हो गया। मीन्स अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3D मालूम हो जाएगी, और अगर D की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ A तो 3/4A हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। बहरहाल, एंड सेकेंड कंडीशन कह रहा है इफ़ इट्स 15th टर्म इज 16, इफ इट्स 15th टर्म इज 16, ये भी मालूम है आपको। अब 15th टर्म कैसे मालूम होगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, A प्लस 14th D। ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इसमें हम A की वैल्यू पुट कर दें D के फॉर्म में तो D की वैल्यू मालूम हो जाएगी। कैसे रखेंगे, 16 इज इक्वल टू A मीन्स 4/3D प्लस 14th D, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपको D की वैल्यू मालूम हो गई, इसमें लाकर रख दीजिएगा तो A मालूम हो जाएगा। उसके बाद जब आपको A और D दोनों मालूम हो जाएगा तब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 10 टर्म, सॉरी। तो फर्स्ट 10 टर्म के लिए जब A और D आपने निकाल लिया कैलकुलेट करके, तो आपको क्या निकालना है, S10। तो S10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके जो ऊपर हमको A और D की वैल्यू मिलेगी इसमें ला के रख देंगे तो आपको 10th टर्म मालूम हो जाएगा। ये काम अपने से करिएगा। क्लियर? बचा हुआ काम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ओके, of an AP, prove that S12 is equal to 3S8 minus S4. Sn means sum of first n term, तो S12 क्या हो जाएगा, sum of first 12 term, and S8 sum of first 8 term, and S4 sum of first 4 term. तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो sum of 12 term है वो इस रिलेशन के इक्वल है। तो सीधी सी बात, अगर Sn मालूम है आपको या Sn के फॉर्म में इक्वेशन आप जानते हैं तो इसमें हमको S12, S8, S4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। बस राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दीजिए, वही मिलेगा जो कि आपका S12 होगा। तो हम ऐसा करते हैं, S4, S8, S12 निकाल देते हैं, बाकी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आपको चेक कर दिए कि ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सपोज Sn इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 14, Sn कितना दिया गया, Sn इज इक्वल टू, ये दिया नहीं तो फॉर्मूला ही होता है n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इतना काम आप कर लीजिएगा। लेट अस सपोज दैट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड द डिफरेंस भी D। ओके, S4 कितने हो जाएगा, S4 इज इक्वल टू 4/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 3D हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स क्या मिलेगा, 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 3D। ये आपको मालूम हो गया S4 की वैल्यू। उसके बाद इन्होंने कहा S8 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। S8 इज इक्वल टू 8/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये 7D हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर लीजिए आप तो ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 2A प्लस 7D। अच्छा,
अब हमको S12 की भी वैल्यू चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो S12 था, तो इसको भी निकाल लिया जाता है। अभी बाद में सबकी वैल्यू एक साथ रख दी जाएगी। 2a + 12 - 1 × d, तो ये 11 आ जाएगा, यानी कि 6 इन ब्रैकेट 2a + 11d। ओके, ये हो गया आपका इतना काम। अब हमको राइट साइड और लेफ्ट साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। प्रूफ क्या करना था आपको? प्रूफ करना था, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ, प्रूफ करना था S12 = 3 इन ब्रैकेट S8 - S4। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू मिलनी चाहिए। लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इन ब्रैकेट 2a + 11d। अच्छा, हमने S4, S8, S12 की वैल्यू निकाली है। आप एक लाइन इसमें और बढ़ा लीजिए। अगर इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो कितना हो जाएगा? 2a + 60, इधर 8a + 28t और इधर 12a + 60। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट ब्रेक करके, ताकि हमें सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट करना हो कि कहीं माइनस का मल्टीप्लाई करना है, कहीं सब्ट्रैक्ट करना है, वरना कई चीज़ें एक साथ होंगी तो पक्का गलत हो जाएगा। तो वो काम मत करिएगा, मेहनत भी आपकी बेकार हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जब ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो S8 और S4 की वैल्यू पुट कर दीजिए और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो कि S12 के बराबर है, वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इतना हिंट काफ़ी है, इससे काम चलाइए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, show that the sum of first n even natural number is equal to the 1 + 1/n times the sum of first n odd natural number। अब आपसे क्या कहा है कि शो करिए कि सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, जो इवन नेचुरल नंबर है वो कितनी है? n। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द 1 + 1/n टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ये इवन नंबर का सम लेना है n टर्म का, और ये ऑड n टर्म का इवन वो सम निकालना है। इन्होंने कहा जो इवन का सम आएगा वो इतने टाइम्स होगा ऑड का। ठीक, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं, क्या कहा है, क्या प्रूफ करना है, उसके बाद में प्रूफ किया जाता है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ करना है। सम ऑफ एन इवन नंबर इज इक्वल टू द 1 + 1/n टाइम्स सम ऑफ एन ऑड नंबर। क्लियर? ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी, और इवन भी नेचुरल है, ऑड भी नेचुरल है। तो सबसे पहला काम, हमको इवन और ऑड नंबर की प्रोग्रेशन फाइंड करनी होगी, दोनों के सम ऑफ n टर्म को निकालना होगा, उसके बाद इसमें ला के रखेंगे, देखेंगे प्रूफ होता है कि नहीं। सम ऑफ n इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे कितने टर्म? n टर्म आपको लेने हैं। क्लियर? इनका सम क्या होगा? Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n - 1 into डिफरेंस। डिफरेंस भी 2 का होता है ना, तो ये हो गया n/2 4 + 2n - 2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें, ये हो गया n/2 in bracket 2 + 2n। अच्छा देखिए, अब अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो वो ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो सम ऑफ एन इवन नंबर कितना हो गया आपका? n इन ब्रैकेट n + 1। देखिए n + 1 बचेगा ना, ब्रैकेट में 1 + n आएगा, बाकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एज ए फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं कहीं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का है। ठीक, अच्छा, अब हमको ऑड नंबर निकालते हैं ना। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये भी कितने टर्म है? n टर्म में, ये भी लेने हैं आपको। ठीक, ऑड नंबर का सम क्या होगा? Sn ऑफ ऑड। इसको भी देख लीजिए, एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा नॉलेज के बेसिस पे, कभी कंपटीशन में अक्सर पूछता है। तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 डिफरेंस, तो इसमें भी 2 का ही आएगा। देखिए 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 + 2n - 2, 2n - 2, तो +2 - 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n² होगा। ये भी फॉर्मूला है कि सम ऑफ n ऑड नंबर कितने होते हैं आपके? n²। ये हो गया, हमको 2 चीज़ें मालूम हो गई।
अब देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से n कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n। आप देखिए एलसीएम लीजिएगा तो n प्लस 1 अपॉन n आएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा। बाय द वे छोड़ देते हैं कि ये हमको ऐसे नहीं मालूम है, हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया था आपका, 1 प्लस 1 अपॉन n सम ऑफ n ऑड नंबर ना, इसमें लाके ऑड नंबर की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन n, ये तो n स्क्वायर मिली है, आप एलसीएम ले लीजिए, n प्लस 1 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, n प्लस 1 n, यही तो सम ऑफ n इवन नंबर है। हाँ देखिए n प्लस 1 आई थी ना, सम ऑफ n इवन नंबर, ये n ऑफ n इवन नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1, और आपने इस राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, बस हो गया, ये प्रूफ करना था। क्लियर? ओके, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रूफ करने वाले इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? और फिर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो अपने से लगाइए, लग सकता है तो ठीक, वरना हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लीजिए उस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से और क्लियर हो जाए। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।